Hello everyone, welcome to today's video where we delve into the fascinating world of compiler. A compiler is a crucial tool in the realm of computer science that basically converts the source code to machine readable language that is in the form of 0 and 1, acting as a bridge between human readable code and the machine language, as I have told you, that computer understands. So join us as we explore the purpose of compiler, what is the role of compiler, what are the compiler type we are having, and basically we are going to explore Turbo C++ compiler, Dev C++ compiler, and code blocks. In this video, we are going to cover these three compiler. Those are basically coming into use while we are compiling any C programming. When we are going through the practical session that we have studied in our theory classes. So without any delay, let's the magic behind turning lines of code into functional software. Let's unravel the mystery of compiler together. So first of all, what we are going to do is we need to find out how to install this compiler. So first what we need to do is we need to have a internet connection in our system. Then what we're gonna do, we can go directly to the Google and search Turbo C++ download. Specifically, you can write over here Turbo C++ download for Windows 8 or 7 or 10 or 11, whatever software you are having. You can basically type that. But the thing is, you just need to find out whether your system is 34-bit software or 64-bit software. That's you just need to know basically, because on that basis the compiler, usually the id provider are basically providing based on this 34-bit compiler, or your system is 64-bit compiler. So by tapping over the first link that is appearing, uh, you will be redirected to the page where you can see there is a Turbo C++ 3.2 software, and it is not a big size software. You can download over it, and by tapping over this download Turbo C++, and it will give you a software. After tapping the software, you can have the software like this. So this is a software I am having. I'm directly moving to the software. Let's say I'm going to software. I'm having the software Turbo C++. This is the icon of Turbo C++. So all the software, जो भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे उसमें C++, देव C++, टर्बो C++, बच्चे लोगों को ज्यादातर दिक्कत हो जाते हैं कि उनको लगता है टर्बो C++ के ये सॉफ्टवेयर है तो C कैसे रन होगा. सो बच्चे लोगों को ये बता दें कि C++ is nothing but C with some class features are C++. सो जो C होते हैं वो C++ कंपाइलर में भी चल जाते हैं. सो लगभग सारे कंपाइलर C++ होते हैं, ताकि C++ इज द सुपर सेट ऑफ C. सो C++ जो कंपाइलर होते हैं उसमें C सारे रन हो जाते हैं. सो वो आप देख सकते हो टर्बो C++ है, जैसे कि देव C++ पे है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे आप एक है स्टार्ट टर्बो C++, यहाँ पे आप टैप करने से ये रिडायरेक्ट करेगा एक प्रोग्राम जहाँ पे कि आप प्रोग्राम लिख सकते हो. सो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको करना क्या है, उसमें आपको जाना है, फाइल में जाना है एंड न्यू एक टैप करना है. सो ले लीजिए ये बाय डिफॉल्ट कोई नेम रहेगा तो उसको आप रीनेम भी करना है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको प्रोग्राम को रीनेम करा देता हूँ.
अच्छा, save, and I'm renaming it as, let's say, no name, let's say for example 1.c. So my file name is example1.c, and it is inside bean. So turbo c3, then bean, there is a folder called bean. Inside the bean folder we are having example.c. So आप कभी भी बाद में जाके उसको एडिट करना चाहोगे कि ले लीजिए कि उसको ले लीजिए वहां पे एडिट करके कोई फाइल डालना चाहोगे तो वो आपको कहाँ मिलेगा? सी ड्राइव में आपका एक फोल्डर रहेगा टर्बो C3 बोल के। वहां पे एक बीन फोल्डर रहेगा। बीन फोल्डर में आपका सारे फाइल्स आपके सेव होते हैं। सो उसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो ये अपन का फाइल हो गया example1.c. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी गोना डू इज, the basic thing, the preprocessor stuff we need to write over here has include here the standard input output header file. I have to include the header file first. Then what I'm gonna write, integer main, and here I need to give. So this is the main function we are having, integer main we are having. This is the preprocessor directives that need to be used in int main as the definition of input output, especially the scanf and printf are those are the library function we are having, and we are going to use one of the functions, that is printf, for our first program compilation. So it should be ended with a semicolon, and the statement inside the printf should be under double quote. Let's say hello world. Let's say we need a string to be print on the console. So the output, जो भी output होंगे वो एक console में डिस्प्ले होंगे। जो इसका डिस्प्ले होता है उसको कंसोल कहा जाता है। सो ये होता ऐसे है कि टर्बो C++ में आपको एक अनदर हेडर फाइल आपको यूज करना पड़ता है, जो कि आपको कंसोल को अच्छे से देखने के लिए। अदरवाइज भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से आपको करना है। ले लीजिए कि आपको अभी रन करोगे तो वो आपको क्या है ना, F5 डाल के वो देख पाओगे, नहीं तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम में आ जाएगा। तो अब बेटर है कि आप यहाँ पे एक अनदर हेडर फाइल दे सकते हो, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। सो उसमें दो फंक्शन अपन को मिल जाते हैं, जैसे कि एक हो गया लेट्स से क्लियर SCR। इनका काम क्या होते हैं हम फर्दर जो आगे के क्लासेस रहेंगे वो हम देखेंगे। और मेरे को नहीं लग रहा है ये कंपाइलर हम आगे के क्लास में यूज करेंगे, क्योंकि वी आर हैविंग गुड कंपाइलर लाइक dev C++ एंड कोड ब्लॉक्स। सो उसको हम इतना यूज नहीं करेंगे। ऑल्दो देखने में ये कलरफुल लगता है, अच्छा लगता है। जो पहले स्कूल स्टूडेंट जितने होते हैं उनका ऑफिशियल सिलेबस में टर्बो C++ होता था। ऐसे भी है कि जो काफी बीटेक कॉलेज के सिलेबस में भी टर्बो C++ होते हैं। कुछ BCA कॉलेजेस में भी, BSc कॉलेजेस में भी ये टर्बो C++ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है अभी तक भी। सो ये भी अच्छा है। जो भी कंपाइलर आप यूज करो, प्रोग्राम सही सेम ही रहता है। एक दो थोड़ा जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, जैसे कि गेट CH एंड क्लियर स्क्रीन, हम एक्स्ट्रा एडिशनल हमको फंक्शन लाइब्रेरी दीज आर लाइब्रेरी फंक्शन वी कैन यूज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देन आफ्टर दैट व्हाट आई कैन राइट इज रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं वो भी मैं आगे का क्लास में बताऊंगा। एवरी फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू, ए न्यूमेरिक वैल्यू, एज द मेन इज ए फंक्शन,
किसी भी पेरेंथेसिस के पहले वाला जो वर्ड होते हैं वो उसको एक फंक्शन के हिसाब से लिया जाता है, और उसके लेफ्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। एंड ये है मतलब ये फंक्शन ये रिटर्न करता है, और जो इनपुट होता है उसके अंदर रहता है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। अभी कुछ कुछ कंपाइलर में आप देख सकते हो उसमें आर्ग सी आर्ग भी रहते हैं, वो आर्गुमेंट काउंट एंड आर्गुमेंट वैल्यूज एरे होते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, वो आर्गुमेंट कहा जाता है। सो अभी इसको जैसे कि यहाँ पे जाके मैं पहले कंपाइल कर लूंगा, देन कंपाइल देख लेने से पता चल जा रहा है कि कोई भी हमारा यहाँ पे वार्निंग नहीं है, एरर भी कुछ नहीं है। सो अभी लाइन कम अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि लाइंस कंपाइल लिखाता है 464। सो कंफ्यूज हो जाता है, अरे इतने कम लाइन है और इतने मतलब ये जो हेडर फाइल्स होते हैं वो लाइन सारे भी कंपाइल हो जाते हैं। सो अभी कंपाइल तो हो गया हमारा सक्सेसफुल, उसको हम अभी रन करेंगे। सो रन करने के लिए हम जाएंगे आ, सो यहाँ पे अपन कंट्रोल एफ, अच्छा सॉरी, एक आर आ गया इधर से कहीं से, हमने तो डाले नहीं है। ये पर्सनली मेरे को टर्बो सी प्लस प्लस उतने अच्छे लगते नहीं, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे। सो अभी रन करने से आउटपुट आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन का हेलो वर्ल्ड आ गया। सो कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करें। सो अभी अगेन मैं कर रहा हूँ ऑल्ट F9 अपन करते हैं, तो ये कंपाइल होता है ऑल्ट F9, याद हो जाना चाहिए, नीचे भी लिखा गया है ऑल्ट F9 कंपाइल है। और कंट्रोल F9 हम करते हैं, जिनका लैपटॉप रहेगा तो कंट्रोल फंक्शन F9 करेंगे वो, तो आउटपुट आ जा रहा है हेलो वर्ल्ड। सो अभी जो हम गेट सी एच फंक्शन दिए हैं वहां पे, उसी के कारण अभी वो वेट किया है। गेट सी एच मतलब जब तक कि एक कैरेक्टर नहीं आता है तब तक वो वेट करेगा, कोई भी कैरेक्टर हम एंटर करेंगे तो अपन का वो मेन स्क्रीन को जाता है, ये गेट सी एच उसी के लिए रहता है। यदि हम गेट सी एच नहीं देंगे तब भी हम देख सकते हैं, वो F5 हम डाल के भी देख सकते हैं। सो ये हो गया अपन का टर्बो सी प्लस प्लस। हम यहाँ पे देख लिए किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप सेव कर लोगे, अभी उसको ओपन करना रहेगा तभी भी आप अभी कैसे जाओगे, फाइल में जाके आप वहां पे भी ये जो फाइल है, फाइल के साइड में थ्री डॉट है, ये फाइल में जाके भी आप उसको ओपन कर सकते हो, और उसको फिर एडिट कर सकते हो, या तो वहां पे दूसरा प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। सो चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसको बंद कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लिस्ट में नेक्स्ट है देव सी प्लस प्लस। सो ये है सो फर्स्ट हम चले जाते हैं देव सी प्लस प्लस को कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम देव सी प्लस प्लस डाउनलोड ऐसे टाइप कर दोगे तो फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा, जो फर्स्ट लिंक आएगा वहां पे आपको चले जाना है, देवसी प्लस प्लस डाउनलोड बोल के जो है वहां पे आपको आ जाएगा देवसी प्लस प्लस बोल के, दिस इज ए फ्री पोर्टेबल फर्स्ट सिंपल आईडी फॉर सी एंड सी प्लस प्लस।
ये ऑरवेल देव सी पी पी दिस इज brought by this company. That's why the name of this software is Dev C++. And here after tapping over this download, you will get your software. और मैं अभी जैसे कि डाउनलोड किया हूँ, तो डाउनलोड फोल्डर में जाने से हमको पता चल जाएगा इसका साइज क्या है। कुछ करीबन आपका साइज आपको 49 MB का करीबन आपको साइज है इस सॉफ्टवेयर का, 49 MB का है। और उसके बाद हम कोड ब्लॉक का भी देखेंगे, कोड ब्लॉक का सम 150 MB का वो सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं अभी डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद वो सिंपल प्रोसेस है, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई भी प्रोग्राम ऐसे ले लीजिए कि आप टाइप कर लिए हो। सो आप फाइल में जाके ऐसे न्यू प्रोजेक्ट करके सोर्स फाइल करके एक एक नया फाइल कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे जैसे मैं एक प्रोग्राम किया हूँ, वैसे कोई भी प्रोग्राम ले लो और वहां पे आपको उसको सेव कर लो। पहले सेव कर देने से ये सुविधा ये हो जाता है कि आप उसमें इसको आप पहले सेव कर लो। तो ले लो कि यहाँ पे जो भी उसका फाइल नेम ले लो कि एग्जाम्पल, ले लो एग्जाम्पल 1 बोल के मैं एक प्रोग्राम का नाम दे दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो मैं अभी प्रोग्राम किया था वही सेम प्रोग्राम को यहाँ पे मैं लाके पेस्ट करा दे रहा हूँ, जस्ट टू नो। वही सेम प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ। वही प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio है। एंड दिस इज सम कमेंट लाइन, मैं अभी के लिए उसको मैं हटा दे रहा हूँ, कोई उसका जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज ए प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, उसमें भी रिटर्न 0 दिया हूँ। यहाँ पे देख लो, वो क्लियर स्क्रीन और गेट ch नहीं चाहिए, क्योंकि ये dev C++ है। यहाँ पे ये आईडी अपने आप कंसोल को मैनेज करता है, इसके लिए सेपरेट कोई भी हेडर फाइल नहीं चाहिए। सो इसमें अपन का करेंगे कैसे। सो अभी जिस तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको पहले अपन क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देन अपन जाएंगे एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट और शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट में पहले कंपाइल कर लेते हैं कि कुछ एरर है कि नहीं। सो एरर में देखो नीचे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि एरर 0 है, वार्निंग भी 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है इसमें कुछ एरर नहीं है। सो एरर नहीं है तो अपन का नेक्स्ट काम ये है कि हम उसको रन करेंगे। सो यहाँ पे फंक्शन F10 उसका शॉर्टकट है, तो हम उसको रन कर सकते हैं। सो रन करने के बाद अभी आप देख सकते हो स्क्रीन में अपन का हेलो वर्ल्ड आ गया। सो अपन का प्रोग्राम भी उसी के लिए ही है कि कंसोल में हेलो वर्ल्ड सिर्फ डिस्प्ले कराना है। सो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जा रहा है हेलो वर्ल्ड। हम प्रीवियस में भी देखे थे, जैसे कि टर्बो C++ में, वहां पे भी हेलो वर्ल्ड और ऐसे इसको बोलते हैं, ये स्क्रीन को बोलते हैं कंसोल, कंसोल वाला स्क्रीन बोलते हैं। तो कंसोल में आपका आउटपुट आ जाते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि बाय डिफॉल्ट जैसे कि आप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये कभी कभार 6 बिट प्रोफाइलिंग में नहीं रहता है, तो उसको प्रोफाइल रिलीज में रहता है, तो उसको प्रोफाइल में कर लीजिएगा, तभी आपका रन होगा। नहीं तो उसका कभी कभार आपका थ्रेट आ जाता है, वायरस है बोल के थ्रेट आ जाता है। तो उसके लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से। कभी कभार वो 1% चांस है आपके सिस्टम में एंटीवायरस रहेंगे, तो उसमें आपका उसमें कुछ एरर आते हैं कि वायरस डिटेक्टेड बोल के। सो ऐसे कुछ इंस्टॉल करने से आने से उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में चले जाना है। सो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको चले जाना है मैनेज सेटिंग में। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ये मैं यहाँ पे
और बाय डिफॉल्ट आपके पास सॉफ्टवेयर जो भी रहेगा एंटीवायरस तो ऑन हो, पहले से ऑन होता है। सो उसको आपको डेलिबरेटली है वो बोलते हैं एक्सप्लिसिटली यू हैव टू टोगल इट ऑफ। टोगल ऑफ कर देने से वो सब थ्रेड्स नहीं आते हैं। तो इसको उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्सी फाइल जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो शायद कोई मैलिशियस फाइल हो सकते हैं बोल के। एंड दूसरा भी वेज है, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में जाके वहां पे भी आप कोड टाइप कर सकते हो। अभी जैसे कि ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले कोई भी सॉफ्टवेयर में ले लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो एंड आपको पता चल रहा है कि वो सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम एक वायरस के हिसाब से देख रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो कोड है पहले आपको सीएमडी करके आपको कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन कर देना है। सीएमडी करके, सीएमडी करके कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, ये राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको ओपन कर लेना है। करने के बाद फर्स्ट लाइन, दो लाइन आपको करना है। ये लाइन पहले आप टाइप कर लोगे तो एसएफसी जो होता है वो सिर्फ आप एसएफसी कमांड जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कमांड होते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर से ही ऑन मतलब आप ओपन किए रहोगे तभी आप कर सकते हो। सो ये आप टाइप करोगे, देन सेकेंड कमांड है ये वाला। ये दोनों करने से आपको मैसेज आएगा विंडो रिसोर्सेज प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रिटी वायलेशन। सो ये एक दूसरा तरीका है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सो ये अपन का हो गया सेकेंड वाला देव सी प्लस प्लस। बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे मैं लास्ट 5 ईयर 6 ईयर पढ़ाता था, तो वहां पे भी देव सी प्लस प्लस ही यूज होता है। अभी बहुत सारे आईआईटीज हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एनआईटीज हैं वहां पे। जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं वहां पे वो सारे कोड ब्लॉक यूज करते हैं। और बहुत सबसे अच्छा है जैसे कि बहुत सारे आईआईटी में ओपन सोर्स यूज होते हैं, लिनक्स एंड उबंटू, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी कोड ब्लॉक का हम देख लेते हैं। कोड ब्लॉक कैसे, अभी थर्ड है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक आईडी वो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हो, कोई बड़ा ऑपरे ले लीजिए, कोई गेम वेम का करने की सोच रहे हो, तो जहाँ पे मल्टीपुल फाइल्स होंगे, मल्टीपुल ऑपरेशन होंगे, तो वहां पे बेस्ट होगा आपका कोड ब्लॉक। और पर्सनली मैं भी कोड ब्लॉक ही यूज करता हूँ स्टूडेंट लोगों को पढ़ाने के लिए। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है सिंपली, यहाँ इन the search bar you have to type code block, code block download. So as I am having window 11, so आप 11 हो या 10 हो, as I have already told you, ये मायने नहीं रखता है। आपको मायने ये रखता है कि आपका 34 बीट है या 64 बीट है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ले लीजिए कोड ब्लॉक, जो कोड ब्लॉक आप देने से एक रिडायरेक्ट करेगा, तो वहां पे फर्स्ट वाला जो लिंक आता है कोड ब्लॉक डॉट ओ आर जी। सो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होगा तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ डाउनलोड में जाओगे, डाउनलोड में टैप करने से ये स्क्रीन आ जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। सो यहाँ पे जाना है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी आर हैविंग ऑप्शंस विंडो एक्सपी विस्टा 7 8 10 एंड अपार्ट फ्रॉम विंडो सॉफ्टवेयर वी आर हैविंग लिनक्स एंड मैक सॉफ्टवेयर। So Mac operating system, the software for Mac operating system and software for Linux operating system. Linux is an open source operating system जहाँ की आपका Mac होते हैं, जैसे कि आपका Apple का जो डेस्कटॉप होते हैं वहां पे Mac operating system होता है। सो उसके लिए आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, एंड लिनक्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, एंड विंडो के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। एंड उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, विंडो के अंदर भी जाओगे तो 34 बीट होता है, देन 64 बीट होता है, उसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि लिनक्स में भी वही है, लिनक्स 32 भी है, 64 बीट है। सो हमको जैसे कि लगभग सारे के पास जैसे कि विंडो के ही होंगे, सो विंडो को हम देखेंगे। सो एक
गलती हमेशा स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक हो गया, ये विंडो का ले लीजिए कि मैं यहाँ पे विंडो में टैप करूंगा तो वही उसमें ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमेशा जो वर्जन है, करंट वर्जन है 20.03 वर्जन है, और लेटेस्ट वर्जन जब मैं जिस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां पे ये वर्जन है 20.03। सो हमेशा स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सेटअप फाइल्स हमेशा होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये फास्ट वाला ये टेप कर देते हैं। बट आपके पास अर्लियर कोई कंपाइलर रहेगा, पहले से जीसीसी कंपाइलर होगा, तो आपको सेटअप EXE करोगे तो वो रन करेगा। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको जाना क्या है, यहाँ पे मिंज डब्ल्यू, the fourth one, code block 20.03 Ming W setup exe. So Ming W is answering of the GCC G++ G Fortran compiler. ये आपका C++ कंपाइलर है बोल के आपको जो आईडी है कंपाइलर के साथ ही आपको इंस्टॉल होगा। सो आप यहाँ पे भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे भी जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ये दो लिंक है बेसिकली। लाइक सोर्स फोर्स मैं यहाँ पे जाके कभी नहीं किया हूँ, सोर्स फोर्स में जाने से भी वो सेम ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं। वो कम से कम साइज है 158, अभी हम जैसे कि देखे साइज कितना था, 148, 148 करीबन आपका MB का साइज होगा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं। सो अभी वो मैं चेक करने के लिए भी दोनों का डाउनलोड मैं फॉस हॉप का भी किया था एंड सोर्स फोर्स का भी किया था। सो जस्ट टू नो कि सॉफ्टवेयर सेम ही है या डिफरेंट है। सो मेरे को पता चल गया कि वो दोनों सॉफ्टवेयर सेम ही है। उसका भी साइज जो है, इसका भी साइज वही है। सो मैं इंस्टॉल लेकिन यहाँ से किया हूँ, सोर्स फोर्स में सेम ही है सॉफ्टवेयर, जहां से भी करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो अभी जैसे कि अपन के पास सॉफ्टवेयर आ गया है, सॉफ्टवेयर आ गया है, तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज उसको टैप करोगे, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, देन आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी कुछ में ले लीजिए कि कुछ में एरर आता है कि वो रन नहीं हो रहा है। सो आपको जाना कैसे है वो आप अच्छे से देख लीजिए। सो आपको यहाँ पे ले लीजिए जैसे कि ये आपका सेटिंग में जाना है, देन कंपाइलर में जाना है। हमेशा स्टूडेंट लोग का ये दिक्कत रहता है, तो ये आप बेसिक चेक कर लो। यदि आपका कोई दिक्कत नहीं रहता है तो ये जाने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ट्रबल शूटिंग आना चाहिए। सो यहाँ पे आपको जाना है टूल चेन एग्जीक्यूटेबल। सो कभी कभार होता है यहाँ पे आपका पाथ सेटिंग सही नहीं होता है। सो पाथ सेटिंग आप आइदर ऑटो डिटेक्ट में टैप कर लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको डेलिबरेटली यहाँ पे आपको जाके वो आपको पाथ सेटिंग कराना है। तो कहाँ पे, कोड ब्लॉक में मिन GW रहेगा, उसके भी अंदर जो बीन रहेगा वो आपको पाथ सेटिंग कराना है। देन आपको क्या करना है, ये जो सी कंपाइलर है, जैसे कि मेरा सी कंपाइलर जो अभी आपको दिखाई दे रहा है 64 बीट का, मैं जीसीसी कंपाइलर उसको सेट किया हूँ, और सी प्लस प्लस के लिए G++ में सेट किया हूँ, और इस तरीके से जैसे मैं सेट किया हूँ आप भी वैसे सेट कर लोगे। और ऐसा नहीं कि दूसरा सेटिंग में नहीं चलेगा, कभी कभार दूसरा सेटिंग में नहीं चलने का चांसेस होता है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कौन सा है, 64 है तो 64 का आपको कौन सा कंपाइलर। ये जो जीसीसी है ये आपका मेन कंपाइलर है, जीसीसी आपका कंपाइलर होते हैं। एंड ये है आईडी। आईडी मतलब आपको कंपाइलर के साथ साथ डिफरेंट बाकी टूल्स भी आपको प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपको अभी जैसे कि अभी जैसे कि हम रन कर रहे हैं, देखो आईडी होने से क्या है ना, ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी होता है। ये एक अच्छा फील देता है आपको, अच्छा लुक्स देता है। देख लो जो जो स्ट्रिंग है एक डिफरेंट कलर में है, एक कीवर्ड है डिफरेंट कलर में होगा,
एंड ये जो फंक्शंस है डिफरेंट कलर में होंगे। यहाँ पे जैसे कि कीवर्ड्स क्या है, इंट है, रिटर्न है, ये आपका थोड़ा डीप ब्लू में है। स्ट्रिंग अपन का आ जाएगा थोड़ा लाइट ब्लू में। एंड आपका ग्रीन में आ जाते हैं आपका जितने प्री प्रोसेसर आ जाते हैं, और जितने आपके कमेंट लाइन हो गया, जैसे कि आपका थोड़ा ऐसे डबल स्लैश देने से कमेंट लाइन, माय फास्ट प्रोग्राम, लेट्स से आई एम राइटिंग माय फास्ट माय फास्ट प्रोग्राम। सो ये थोड़ा और लाइट पर्पल जैसा कलर आ जा रहा है, थोड़ा इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए। सो ये भी आप टूल में जाके साइज बड़ा कर सकते हो, लेकिन ऐसे माउस में भी आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके भी आप कर सकते हो। सो ये अपन का एक प्रोग्राम हो गया इंट मेन। जैसे कि ये आप कैसे क्रिएट कर पाओगे, जिस तरीके से, क्योंकि हम कोड ब्लॉक में काम करने वाले हैं, सो मैं कोड ब्लॉक को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। सो अभी करूंगा कैसे, अभी ले लियो, मैं उसको कॉपी कर दे रहा हूँ क्योंकि उसको फिर और टाइप करना नहीं है। सो अभी मेरे को करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, एंड लेट्स से कि एम्प्टी फाइल एक कर लूंगा। डू यू वांट टू ऐड दिस फाइल इन द एक्टिव प्रोजेक्ट, हैज टू बी सेड, नो, मेरे को यहाँ पे नहीं करना है। तो उसको कर लेने से यहाँ पे जैसे कि यहाँ ये देख लीजिए, अभी इसके उसको जाएंगे हम, किस तरीके से प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे, किस तरीके से नहीं, वो हम डिटेल में जाएंगे। ले लीजिए, मैं उसको मैं पूरा बंद ही कर दे रहा हूँ। आपको पहले से ही इसको किस तरीके से ओपन करोगे और किस तरीके से प्रोग्राम इज रनिंग। सो सो यही बता रहा था कि आप इसमें दो तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो। डायरेक्टली आप जाके न्यू प्रोग्राम भी कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे आप एक फोल्डर बना के उसमें एक प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होगा, एंड फोल्डर में आपका फाइल्स होंगे। जैसे कि आपका उसमें मल्टीपल फाइल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल ले लीजिए कुछ फाइल का ऑपरेशन भी करना रहेगा तो वहां पे मल्टीपल फाइल रख के भी आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आप कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है। सो उसके अंदर क्लोज दिस प्रोग्राम, लेट्स से वी आर क्लोजिंग दिस प्रोग्राम। सो हमको जाना है टर्बो, सॉरी, कोड ब्लॉक में जाना है। जैसे कि आप लोगों को बताया था, कोड ब्लॉक, ये कोड ब्लॉक का सिंबल है, ये देव सी प्लस प्लस का सिंबल है, ये कोड ब्लॉक का सिंबल है, ये टर्बो सी प्लस प्लस का सिंबल है। ये तीनों को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो पास पास में रख दे रहा हूँ, तो आपको तीनों का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये तीनों अभी कोड ब्लॉक को स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, एंड दोनों तरीके से हम जानने का कोशिश करेंगे। ये देख लो, ये मैसेज आता है, कांट फाइंड कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल इन योर कॉन्फ़िगर सर्च पाथ फॉर जीनू जीसीसी कंपाइलर। तो ये कंपाइलर नहीं हो पा रहा है, एनवायरमेंटल एरर आ जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ एरर आ जाने से आपको करना क्या है, आपको सेटिंग में जाना है, एंड कंपाइलर में जाना है, एंड वहां पे आपको यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करा देना है। एंड ऑटो डिटेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जा रहे हैं। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम में जैसे कि मैं बताया था 64 टाइप का था ये, जैसे कि ये कॉमन आ जा रहा है, तो ये भी रन करेंगे, देख लेते हैं रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन फाइल, एंड हाँ अपन जाएंगे न्यू एंड एम्प्टी फाइल। सो एम्प्टी फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं बता दिया, पहले आप सेव कर लो, सेव नहीं करोगे तो कुछ लिखोगे तो एज नॉर्मल टेस्ट आएगा। सेव कर देने के बाद आपका उसका फंड सारे चेंज हो जाते हैं। सो आई रेकमेंड कि आप पहले उसको सेव कर दो। सेव करोगे, जैसे कि मैं प्रोग्राम फाइल के अंदर ले लो कि यहाँ पे सेकेंड फाइल में दे दे रहा हूँ, डेमो डेमो टू, जैसे कि डेमो टू बोल के एक फाइल में दे दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक्सटेंशन सी दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे सी एंड सी प्लस प्लस सिलेक्ट कर लोगे, एंड यहाँ पे आप देख लो, आप चेक कर लो कि डेमो टू डॉट सी है। डॉट सी इज फॉर योर सी फाइल, एंड सीपीपी इज फॉर योर
C++ फाइल। सो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी लिखूंगा, अभी जैसे कि ये कमेंट लाइन में दिया कि आई एम इनसाइड कोड ब्लॉक IDE. IDE is for your integrated development environment. So यहाँ पे जैसे कि मैं पहले से कॉपी किया था, एंड यहाँ पे मेरे को बेटर होगा मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे फिर से अगेन मैं हैश, यहाँ पे ये देख लो आप, हैश लिखने से क्या क्या आप, ये सारे प्री प्रोसेसर हैं, इतने सारे प्री प्रोसेसर हैं। हैश लाइन इंक्लूड इफ एंड डेफ, इफ डेफ, इफ एरर एंड इफ एल्स, elif and def, elif define. So these are all preprocessor directives. So हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हैश इंक्लूड को लाएंगे। सो हैश इंक्लूड को यहाँ पे लाए, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक हेडर फाइल्स लाएंगे जो जिसको बोलते हैं अपन का स्टैंडर्ड। उसको भी हम थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा कर देते हैं सो दैट कि आपको विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा हो जाए। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद हम इंट मेन करेंगे, एंड इंट मेन करने के बाद अपन का दोनों अच्छा, सो यहाँ पे हम रिटर्न 0। अच्छा, रिटर्न 0 यहाँ पे हम टाइप कर लिए हैं। यहाँ पे हम करेंगे जो भी हम यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम प्रिंट किए थे, प्रिंटफ ये लाइब्रेरी फंक्शन है, उसका डेफिनेशन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स में है, जैसे कि आपको पहले बता दिया था। अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक कोड लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोड लेने से हम स्ट्रिंग रख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी हेलो वर्ल्ड बोल के हम एक प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आप लिख सकते हो, अंडर कोट होना चाहिए, राम श्याम घनश्याम जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कोड के अंदर लिखोगे। सो अभी ये अपन का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अभी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज, फर्स्ट ये सेव है, सेव में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद वहां पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बिल्ड करना है। सो बिल्ड करने में कुछ दिक्कत आ रहे हैं, जैसे कि पहले बताया था मैं, ये रन नहीं होगा। सो आपको सेटिंग में जाना है, कंपाइलर में जाना है, आपको यहाँ पे जाना है। अभी देख लो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। सी कंपाइलर में जाके यहाँ पे उसको 64 में आपको डाल देना है। ये जो है 64 कौन सा है, 64 GCC 64, ओके, ये वाला अपन यहाँ पे कर देंगे। एंड सेकेंड वाला में जी, C++ जहाँ है वहाँ पे जी वाला में कर देंगे, जैसे कि ये हो गया अपन का। एंड वही सेम चीज नीचे में भी हम कर सकते हैं। एंड बाकी को एचडी रखते हैं और चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी उसको हम ये है बिल्ड है, उस कंपाइल करने के लिए ये रन है, और ये दोनों बिल्ड एंड रन एक साथ। तो पहले हम बिल्ड करके देन उसको हम रन करेंगे, तो रन करने से हमको पता चल जा रहा है कि हेलो वर्ल्ड, ओके, अपन का जो आउटपुट आ जा रहा है। सो ये अपन का यहाँ जो कंसोल है ये इस तरीके से दिखाई देता है। सो इधर भी अपन का हेलो वर्ल्ड आ गया है। सो ये वन वेज है। तो इसको अभी मैं ऐसे कर देने से भी नहीं होगा, इसको मेरे को क्या करना है ना, पहले से जो है उसको बंद करना है। एल्स यहाँ पे आपको डीबग में
आपको और रनिंग दिखाई देगा। ये इसको यहाँ पे जाके एबोर्ट करना पड़ेगा। अभी उसको जैसे कि अपन एक प्रोजेक्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अपन जाएंगे, न्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे एम्प्टी फाइल नहीं जाके एक प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड जैसे कि हमको पता है ये हम कंसोल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत सारे प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से आप फर्दर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो उसका रिलेटेड आपको जरूरत पड़ेगा। अभी जैसे कि सी पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन ही आपको चाहिए। कंसोल एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करोगे, देन आपको बोलेगा कि कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हो। नहीं, सी का करोगे तो प्रोजेक्ट का नाम ले लो कि जैसे कि प्रोज बोल के मैं कुछ ऐसे दे दिया। एंड गलती ऐसा नहीं करना, फोल्डर को एज इट इज नहीं छोड़ देना है आपको। यह यहाँ पे जाना है, एक्सप्लिसिटली आपको जाना है। जैसे कि डेस्कटॉप में कोड ब्लॉक में मैं टीआर फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स टीआर के अंदर ही अपन का वो रहेगा। सिलेक्ट फोल्डर किया हूँ तो कोड ब्लॉक के अंदर टीआर फाइल है, टीआर फाइल के अंदर प्रोजेक्ट फाइल अपन का टीआर फाइल। देखो यहाँ पे रिजल्टिंग फाइल डेस्कटॉप के अंदर कोड ब्लॉक है, कोड टीआर फाइल है, टीआर फाइल के अंदर प्रोजेक्ट रहेगा, देन उसके अंदर अपन का प्रोग्राम आएगा। सो अभी अपन नेक्स्ट करते हैं और बाकी को एज इट इज रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप देख लोगे तो स्टूडेंट लोग ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो ये क्या आ गया बोल के। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा इधर ऊपर में जैसे कि थोड़ा आपको टैप करना है। तो आपको देखना है प्रोजेक्ट, यहाँ एक रहेगा लेफ्ट में प्रोजेक्ट बोल के, प्रोजेक्ट में चले जाना है। तो सोर्स के अंदर आपका वो फाइल, जैसे कि मैं बोला कि अभी जैसे कि नया फाइल किया हूँ, लास्ट में एक फाइल किया था डेमो बोल के, ये मेन का ये ये बाय डिफॉल्ट ऐसे एक प्रोजेक्ट आ गया जिसमें कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स और एक है जिसमें कि आपका कुछ जैसे कि एग्जिट बोल के एक लाइब्रेरी फंक्शन है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं। अभी के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हटा देने से भी ये रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अभी इसको रन करूंगा। अभी जैसे कि मेन में उसको रन करूंगा तो मैं उसको ये बोल रहा है इट सीम्स प्रोजेक्ट हैजंट बीन, ओके यस करा देते हैं एंड आपका आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड बोल के आ गया। सो आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि कोड ब्लॉक में दो तरीके से कैसे करोगे। तो एक तो प्रोजेक्ट बना के आप कर सकते हो अभी, और एक है ऐसे प्रोजेक्ट बना के, देखो प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स एक फोल्डर रहेगा, अभी इसमें कर रहोगे फाइल प्रोग्राम, इसमें कुछ भी ऐड करना रहेगा तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि हो गया सोर्स फाइल में जाएंगे एंड अभी जैसे कि ये अपन का सोर्स का एक फोल्डर हो गया एंड यहाँ पे अभी हम ले लो कि यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ पे दूसरा अभी कुछ अभी जैसे कि और एक फाइल करना चाहेंगे तो ये सोर्स फाइल में भी हम रख सकते हैं। उसको ले लीजिए कि कोई फंक्शन वंक्शन करना रहेगा तो हम उसको वहां पे कॉल कर सकते हैं। ले लो कि कोई फाइल प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं और फाइल प्रोग्रामिंग में ये एक मेन का हो गया एंड मेन का होने के बाद वहां पे ले लीजिए जो फाइल से हमको रिट्रीव करना है मेन में, और फाइल से मेन से कोई हमको स्टोर करना है तो वो फाइल भी हम यहाँ पे रख रख सकते हैं। सेम डायरेक्टरी में रहना चाहिए तो सेम में हम रख सकते हैं, तो फाइल वाला ऑपरेशन भी इजी हो जाता है। सबसे इजी पार्ट जैसे कि मैं डेमो 2 का बताया था, कुछ करना नहीं है, फाइल में जाना है आपको, सिंपल जाना है न्यू एंड एम्प्टी फाइल, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एन दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा देने से आपको क्या हो जा रहा है, ऐसे कुछ आ जाए। तो अभी जैसे कि आपका फाइल हो गया है ना, तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड दिस न्यू फाइल इन द एक्टिव प्रोजेक्ट। ये जो एक्टिव प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो, हाँ करा दो, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। तो एक्टिव प्रोजेक्ट में अभी उसको मैं दे दे रहा हूँ समथिंग HELLO, तो उसको भी हम वहाँ पे ऐड करा देते हैं। सो ये बोल रहे हैं मल्टीपल सिलेक्शन डिबग रिलीज, ओके। सो यहाँ पे देख लो जैसे कि यहाँ पे क्या हेलो सी भी आ गया और मेन, दो ये दोनों सोर्स फाइल के अंदर है। सो ये हो जाता है जब इंटरलिंक फाइल होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये अपन का
सुविधा हो जाता है एक फोल्डर में रहने से। उनका जो है जो मतलब वैल्यू का इंटरचेंज होना, या कोई ले लीजिए फाइल का एक्सचेंज होना। ये ले लोग फाइल में वैल्यू, फाइल में कुछ वैल्यू आप दे रहे हो कि अपेंड कर रहे हो फाइल में, जैसे कि राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, कोई भी फ्यूचर का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में आप ये चीज काम आएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली जाके जैसे आप कर रहे हो वो उसमें वो आप स्टैंड अलोन प्रोग्राम के लिए वो सही है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले से बता दिया था कि चाहे आप जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हो, कोई मोबाइल का कंपाइलर यूज कर रहे हो, कोई ले लीजिए कि देव सी प्लस प्लस हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, सारे कंपाइलर सेम ही है। कंपाइलर का काम है जो सोर्स कोड है उसमें प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। सिर्फ चेंजेस होते हैं आईडी में। आईडी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से उसी के दौरान आपका ले लीजिए कि जैसे कि मोबाइल में कुछ आईडी होते हैं, जैसे कि इंट मेन लिखोगे वहां रिटर्न जीरो नहीं लिखने से भी वो रन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे शायद ये रन नहीं करेगा। सो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये उसका सिंटेक्स का एक पार्ट है। यहाँ पे भी रन कर जा रहा है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कोई भी आप इंटीजर मेन लिख रहे हैं तो हम रिटर्न जीरो लिखेंगे, क्योंकि एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग। और यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं लिखना है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, अभी मैं उसको सेव नहीं किया था शायद, सेव करके फिर उसको एबॉर्ट करना है। बिल्ड में जाके उसको एबॉर्ट करोगे, देन अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे कुछ रिटर्न जीरो नहीं लिखना है तो आप वहां पे void लिख सकते हो। सो ये था अपन का आज का वीडियो। तो ये इस वीडियो में we get to know what are the types of compiler we are having, to compile C as well as C++. What is the necessary of having compiler for programming language? uh, uh, what are the how we can get the software through the different website. What are the installing process. This is the first step of the programming through which we can get to our other topic. So आगे के वीडियो में हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, बेसिक प्रोग्राम से शुरू करेंगे। तो तब तक आप आपके मोबाइल में हो गया या तो सिस्टम में हो गया, आपका सिस्टम में आपका कोई भी आईडी आप इंस्टॉल करा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।